Has it happened you have done some mischief at home, and when your mother asked about it, you said that I don't know who did that mischief? So, students, come, let us enjoy the poem Mr. Nobody. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. The poem talks about a little man, probably indicates a kid whom no one has seen. This little man is very quiet and does all the mischief in everyone's house. He is the one to be blamed for every broken plate. Nobody is described as the one who is responsible for doing mischief in the home. This means that everyone has Mr. Nobody in their house. Now let us learn new words. Quiet, mischief, everybody, agree, nobody. These are the new words. Quiet. Q-U-I-E-T. Quiet means शांत बैठना. जब आप क्लास में होते हो, मोस्टली आपको आपकी मैम, आपकी जो टीचर्स हैं, वो आपको कहती है बी क्वाइट, कि सभी लोग शांति से बैठ जाइए, बिना आवाज किए बैठ जाइए. So quiet means without making any noise. Example sentences. Reena is very quiet in the class. Second one is my dog is very quiet. So quiet means without making any noise. कोई भी noise हमें नहीं करना है. Quiet बैठना मतलब एकदम शांत बैठना. Second word is mischief. Mischief means trouble caused by someone. Example sentences. His mischief in the class was caught by his class teacher. She was bent on making mischief. तो mischief क्या होता है? कुछ गलत काम करना है. जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे पे कीचड़ उड़ा रहा है, और दूसरी पिक्चर में आपको दिख रहा है ये बच्चा चुपके से वॉल पे कलर चला रहा है, पेंट कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड मिस्chief. Next word is everybody. Everybody means every person, every single person. Example sentences are everybody has to raise their hands, everybody will have to suffer because of him. So everybody means every single person. जैसे आपको क्लास में बोला जाता है ना, everybody has to raise their hands, सबको हाथ उठाना है जिन जिन बच्चों को आंसर आता है. तो everybody means every single person. You have to write in your English copy. Next word is agree. I totally agree. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक पप्पी जो है कह रहा है कि I totally agree. दूसरे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि अंकल कह रहे हैं कि agreed. तीसरे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चा भी कह रहा है agree. तो agree means सहमत होना. Having a same opinion. Example sentences are I agree that he is very punctual in class. I agree to the fact that you are very careless. तो agree means क्या? Having a same opinion. Next word is nobody. Nobody can handle me. Nobody means no one. कोई भी नहीं. Nobody means कोई भी नहीं. जैसे आपने everybody में देखा था everyone, इसी तरह से nobody में no one. No one जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. Nobody means no one. Nobody means no one. कोई भी नहीं. जैसे बहुत से बच्चे कहते कि नहीं कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी मुझे खेलने से रोक नहीं सकता. तो इसी तरह से nobody का मीनिंग क्या है? No one. Nobody means no one. Example sentences are nobody should tease animals, nobody should make
a noise while I pray. Now question answer. Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन था? Answer is Mr. Nobody is a funny little man who does mischief in everybody's house. इट मीन्स सबके घर में कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो इस तरह से नॉटीनेस करता है और किसी को पता भी नहीं चलता, इसलिए उसका नाम क्या है? मिस्टर नोबडी। क्या आपके भी घर में ऐसा कोई है? क्या आप भी इसी तरह से कुछ नॉटीनेस करते हो, मिस्चिफ करते हो, कुछ शरारत करते हो? मुझे पता है आप ज़रूर करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? आंसर इज नो, नो वन हैज़ एवर सीन मिस्टर नोबडीज फेस। क्यों ऐसे? क्योंकि कोई भी बच्चा जब शरारत करता है तो चुपके से करता है और पूछने पे क्या कहता है? नहीं, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने प्लेट तोड़ी है या वो ये शरारत किसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके हाउस में भी ऐसा मिस्टर नोबडी है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो मिस्टर बडी इन माई हाउस। पर आंसर क्या होना चाहिए? यस, देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। क्यों ऐसे? क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई ऐसा छोटा बच्चा होता है जो शरारत करता है और छुप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने भी कभी इस तरह की नॉटीनेस की है, नॉटी हरकतें की हैं? आंसर इज यस, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैड डन समथिंग नॉटी एंड मिस्chievous। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। जो भी आपने मिस्चिफ की है वो उसके बारे में आप इस आंसर में लिख सकते हो। तो कोई भी इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो वो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू डू? तो आंसर इज, आई ब्रोक माई नेबर्स विंडो पेन व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो इस बच्चे ने फुटबॉल खेलते टाइम पड़ोसियों के विंडो की ग्लास पेन जो होता है उसको तोड़ दिया था। व्हाट डिड यू से? आंसर इज, आई अपोलाइज टू माई नेबर एंड एश्योर दैट आई वुड नॉट रिपीट इट अगेन। मैंने अपने नेबर से सॉरी कहा था और कहा था कि इस तरह का मिस्चिफ इसके बाद कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिखना है। ये तो एक एग्जाम्पल है और आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? Now the next question, sometimes you want to look and find things for yourself. Tick those that you did. Tell your friends. तो इसमें से जो जो चीज़ें आपने की है उसके आगे आपको राइट टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट में है, आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि क्लॉक क्यों टिक टिक करता है। तो आपने अगर ये किया है तो आप क्या करोगे? टिक लगाओगे। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। मैं घर से बाहर गया था किस लिए? स्टार्स को देखने के लिए, रात को बाहर निकला था। अगर आपने ये किया तो आप टिक लगा लीजिए। आई क्लाइम ए ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। मैंने नेस्ट को देखने के लिए ट्री पे मैं चढ़ गया था। अगर आपने ऐसा किया तो टिक लगा लीजिए। आई क्लाइम ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। मैंने बिस्किट को लेने के लिए और ढूंढने के लिए मैं स्टूल पे चढ़ा था। अगर आपने भी ऐसी हरकत की है तो यहाँ पे आपको बॉक्सेस में टिक लगाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? जिनके साउंड जो है सेम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो आपको इनको तेज आवाज में बोलना है और राइमिंग वर्ड्स को सर्कल लगाना है। तो सेंटेंस है, अ माउस रैन इनटू द हाउस। तो यहाँ पे क्या राइमिंग वर्ड है? माउस, हाउस। तो इनको सर्कल करना है क्योंकि इनका साउंड जो है एक जैसा है। आई कैन सी द लिटिल बी। सी, बी, दीज आर द राइमिंग वर्ड, सर्कल देम। दैट वॉज अ फैट कैट। इसमें कौन सा है राइमिंग वर्ड? यस, योर आंसर इज राइट, फैट कैट। तो इन दोनों को सर्कल कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिस्चीफ।
तो बताइए कौन सा है राइमिंग वर्ड, कौन से है 2 राइमिंग वर्ड्स, हैंकरचीफ एंड मिसचीफ। तो इनको क्या करना है, आपको रेड सर्कल लगाना है। माउस हाउस, सी बी, फैट कैट, handkerchief, mischief. These are the rhyming words and you have to circle them. नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with A, E, I, O, U. A, E, I, O, U क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। ये एक्टिविटी हमने पहले भी की है। तो हेड की स्पेलिंग क्या है, HEAD, ARMS आर्म्स, LEGS legs, DRESS ड्रेस, HAIR हेयर। तो आपको इन वॉवल्स को सही जगह फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ये एक्टिविटी हमने पहले भी की हुई है, आपको शायद याद होगी। हमने हैंड पे लिखा हुआ था, अपने फिंगर्स पे AEIOU हमने लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। तो नो ऐड करके क्या बनेगा, नोबडी। नोबडी मीन्स नो वन। सम या ऐड करके क्या बनेगा, समबडी। समबडी मीन्स कोई तो भी। एंड एवरी ऐड करके क्या बनेगा, एवरीबडी। एवरीबडी मीन्स सब लोग, एवरीवन। तो नोबडी, समबडी, एवरीबडी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, मिस्टर दिनेश दीक्षित। तो सीमा ने अपने फादर का नाम जब लिखा है तो उनके नाम के आगे मिस्टर लिखा है। तो आप भी अपने फादर का नाम लिखोगे और उनके नाम के आगे मिस्टर लगाओगे। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, मिसेस स्नेहा रामदास। राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा है पर उस नाम के आगे मिसेस लगाया है। तो आपको भी अपनी मदर का नाम लिखना है और उनके नाम के आगे मिसेस लगाना है। Now the next question for you, self-assessment question. What do you think about Mr. Nobody? Mr. Nobody के बारे में आप क्या सोचते हो? तो आपको ये आंसर अपने आप लिखना है और कॉपी में लिखना है और इसके बारे में एटलीस्ट आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं कि मिस्टर नोबडी कौन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो ये पोएम आपको लर्न करनी है और मुझे सुनानी है। और द जिगजैग बॉय, ये पोएम भी आपको लर्न करनी है और मुझे सुनानी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.